Everybody, welcome to my channel. Today we are going to read and understand chapter number 7, Transportation, Animals and Plants. So let us see that first what we will learn from this chapter. At the end of this chapter, students will be able to understand what is circulation and circulatory system, what is a blood and their components, different types of blood vessels involved in transportation, structure of heart and their function, excretion in animal, structure and function of human excretory system, how do plants transport substance throughout the body, and how does transportation help transport of water and other mineral. So we are going to learn all these things in the chapter. Let us start with chapter. Food, water and oxygen are essential for all living beings for their survival. So जो food, water and oxygen है वो ऑल जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The food which we eat is first digested and then reached to every cell of the body. Similarly, oxygen reaches to lungs and finally transported to all cells of body. So जो फूड है जो हम खाते हैं वो पहले डाइजेस्ट होता है और फिर वो हर सेल तक पहुंचता है हमारी बॉडी के. सिमिलरली जो ऑक्सीजन है वो पहले लंग्स में जाती है और फिर वो बाद में ट्रांसपोर्ट होती है टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. सो in the presence of oxygen, cell perform several metabolic processes that releases energy. So जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करती है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है. Besides energy, it also releases many waste products that must be removed from the body. तो एनर्जी के साथ वो बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिमूव करती है जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. It means different substances in the body are transported from one place to another. मीन्स जो हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग सब्सटेंस हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. In this chapter you will learn about the transport of various substances in plants and animals. So हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि कैसे जो हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है और सिर्फ हमें ही नहीं प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी. Let us read about circulatory system. In human being, circulatory system carries blood from heart to different part of body and bring it back to heart. This system consists of heart, blood vessels and blood. So जो human beings हैं उसमें जो circulatory system होता है वो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक और फिर सारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाते हैं और इसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. और इस सिस्टम में 3 ऑर्गन्स रहते हैं. फर्स्ट इज हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. तो जो ब्लड वेसल्स एंड ब्लड हैं ये ऑर्गन्स नहीं है पर इन तीनों की ही हेल्प से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है. फर्स्ट लेट अस रीड अबाउट ब्लड. इन ह्यूमन बीइंग, blood is a fluid component which flows in vessels and help to transport digested food, gases and waste product. Blood consists of following 4 types of components. तो जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कंपोनेंट है. फ्लूइड कंपोनेंट यानी एक लिक्विड कंपोनेंट है हमारी बॉडी का
जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में डाइजेस्टेड फूड की गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करता है। जो ब्लड है वो उसमें 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो लेट अस रीड अबाउट इट। रेड ब्लड सेल्स. These cells contains red pigment called hemoglobin. Due to the presence of hemoglobin, blood appears red. Hemoglobin plays a very important role in the transportation of oxygen from lungs to cell of the body and carbon dioxide from the cell to lungs. तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो उसमें एक रेड पिगमेंट रहता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं और जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रेड होता है। और हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स and carbon dioxide from lungs. Then second component is white blood cells. These cells fight against the foreign antigen that enters in our body and protect us from the diseases. तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टर जो कि एक सोल्जर का काम करती हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन आता है तो वो उससे फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिसीज़ से। तो यहाँ पे जो फॉरेन एंटीजन्स हैं वो यानी कि जो वायरसेस हैं जो कि बाहर से हमारी बॉडी में आते हैं। So platelets, these are the types of cell fragment that helps in the clotting of blood at the time of injuries. तो ये जो प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करती हैं इंजरी के टाइम पर ब्लड को क्लॉट होने में। Plasma, it is the fluid component of blood in which all types of blood cells or compulses remain scattered. जो प्लाज्मा है वो फ्लूइड कंपोनेंट होता है ब्लड में जिसमें सारे टाइप्स के जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स. Human circulatory system consists of 3 types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. So let's us read about arteries first. Arteries carries oxygen-rich oxygenated blood from heart to all part of the body. आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में। इन an artery flow of blood is rapid. That is why the arteries are made up of thick and elastic wall. Only pulmonary artery carries CO2 deficient and CO2 rich deoxygenated blood फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो जो आर्टरीज होते हैं वो हमेशा जो उनका ब्लड का फ्लो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहता है। इसी वजह से जो आर्टरीज की वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक और इलास्टिक होती हैं। और जो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी होती है वही बस O2 डेफिशिएंट यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। तो यहाँ पर एक चीज़ ना हमें लर्न करनी चाहिए कि जो आर्टरीज होती हैं ना उन्हें इससे लर्न नहीं करना है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, उसे इससे लर्न करना है कि आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। तो जैसे कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी भी है ये हार्ट से ब्लड को लंग्स तक ले जाती है और बाकी सारी आर्टरीज भी हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाती है।
और हमें बस इतना याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी बस सबसे अपोजिट है। और ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ही होगा, तभी तो वो अदर बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन देने जा रहा होगा। बस हमें इतना याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी अपोजिट है। Veins carries carbon dioxide rich blood from all parts of bodies to the heart. In veins, valves are present that allow blood to flow only towards heart. The walls of veins are comparatively thin. Only the pulmonary vein, which carries O2-rich oxygenated blood and CO2 deficient blood from lungs to heart. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आर्टरीज हमेशा जो ब्लड है उसे हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में ले जाती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सारी ऑक्सीजन बाकी बॉडी पार्ट्स को दे देता है। फिर अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी वापस से ऑक्सीजनेट होने के लिए हार्ट के पास आना पड़ता है। तो फिर जब वो हार्ट में आएगा तो वो वेन्स से आएगा। तो वेन्स कैरीज carbon dioxide rich blood, means deoxygenated blood from other body parts to the heart. And just like pulmonary artery was opposite than other arteries, similarly the pulmonary vein is opposite to normal veins, because जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स से हार्ट, यानी कि दूसरे बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके जाती है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज आर थिक एंड वेन्स आर थिन। आर्टरीज आर इलास्टिक एंड veins are non-elastic. Arteries carries oxygenated blood except pulmonary artery, and veins carries carbon dioxide rich blood except pulmonary vein. Okay, and arteries do not contain walls, but veins contain walls. Now what are valves? Valves are the thin flap-like structure that protects the blood flow to come down again. Means जैसे कि हमारी बॉडी में जब वो जो वेन्स हैं, सो वेन्स में जब नीचे से पूरे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा तो यहाँ पर जो हार्ट से जब ब्लड आ रहा था तो वो डायरेक्टली नीचे आ रहा था, तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे नॉर्मली आ रहा था। पर अब जब वो ऊपर जाएगा वापस हार्ट के पास, वो ग्रेविटी की वजह से ऊपर नहीं जा पाएगा, बार बार नीचे आ जाएगा। तो वो नीचे ना आए, इसीलिए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिर्फ ब्लड को अलाउ करते हैं ऊपर जाने के लिए, और फिर वो क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस से नीचे ना आ जाए। और आप ये हार्ट में भी देख सकते हो वॉल्स को। यू कैन सी हेयर ऑल्सो, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर ये सारे वॉल्स हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कैपिलरीज। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स अपोजिट क्यों रहते हैं आर्टरीज और वेन्स से, ये आपको जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। नाउ लेट अस रीड अबाउट कैपिलरीज। Capillaries are the blood vessels which are extremely thin and also consist of thin
very thin walls, not valves. These vessels help to join the arteries and veins. Several capillaries join to form veins which then empty into the heart. तो जो कैपिलरीज हैं वो ऐसे वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो वेन्स और जो आर्टरीज हैं इन्हें जॉइन करने में हेल्प करते हैं। यानी कि अब जब भी जहाँ पर भी आर्टरीज और वेन्स मीट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थिन पार्ट से मीट होते हैं, और वो जो थिन पार्ट होता है वही कैपिलरीज होता है। और वेन्स और आर्टरीज तब बनते हैं जब उनमें बहुत सारे कैपिलरीज, अगर आप जब बहुत सारे जॉइन कर देंगे तब जाके वो वेन्स या फिर आर्टरीज बनेंगे। और फिर यही जाकर हार्ट से जॉइन होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज हार्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर organ that is associated with circulatory system. It is situated in chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. The human heart consists of 4 chambers. The upper two chambers are called atria. And if we say in singular form, it is atrium. And the lower 2 chambers are called ventricles. The left part of the heart is separated from the right part of the heart with the help of a septum. और वो चेस्ट कैविटी जो है हमारी वो हमारे चेस्ट कैविटी में है, और उसकी जो लोअर टिप है वो हल्की सी टिल्टेड है लेफ्ट के टूवर्ड्स। और जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं आर्ट्रिया। और जो अगर हम उसे सिंगुलर फॉर्म में बोलें तो वो एट्रियम होता है। और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो देखिए, आप देख सकते हो कि ये जो है, देखिए जो ये है यहाँ पर, ये ब्लू कलर से आपको राइट साइड के 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो ये जो है ना, ये सेपरेटेड है वॉल्व्स आपको दिख रहे होंगे बीच में, है ना। तो ये अपर राइट के 2 चैम्बर्स हैं, और जो लेफ्ट वाला है यहाँ पर रेड कलर का वो भी सेपरेटेड है 2 चैम्बर्स। तो टोटल्स में है 4 चैम्बर्स। फिर आपको यहाँ पर ब्लू और रेड के बीच में यहाँ पर आपको एक ये येलो कलर की एक सेपरेशन दिख रहा होगा, ये है सेप्टम, और ये इस राइट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट करती है। अब आप कह रहे होगे कि अगर आप अपने राइट या लेफ्ट के हिसाब से देखोगे तो ब्लू वाला आपका लेफ्ट है और रेड वाला आपका राइट है, पर हार्ट में ऐसा नहीं होता है। हार्ट का जो ये ब्लू वाला है वही राइट है और रेड वाला ही लेफ्ट है, ये चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये जो अपर का ब्लू और अपर का रेड है वो दोनों को हम कहते हैं आर्ट्रिया। तो हम इसे कहेंगे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। एंड जो लोअर का ब्लू एंड रेड है हम उसे कहेंगे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया,
सारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है कि उसमें कितनी चीज़ें, मतलब उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फिर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, है ना। और सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, तो हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स, हार्ट। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि है रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण वो रेड रहता है। वाइट ब्लड सेल्स, जो कि फाइट करती हैं बाहर की जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं। प्लेटलेट्स, जो कि हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जब भी हमें कोई इंजरी होती है। प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड कंपोनेंट होता है ब्लड का। ओके, और नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज थिक होती हैं और उसमें वो हमेशा ब्लड को हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करती हैं। बस पल्मोनरी आर्टरी और इसके जस्ट अपोजिट है। वेन्स हमेशा ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट में लाती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लाती हैं। और पल्मोनरी वेन इसका जस्ट अपोजिट है। कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को जॉइन करती हैं, और बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर आर्टरीज और वेन्स बनाते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके 2 अपर चैम्बर्स आर्टरिया कहते हैं एंड 2 लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहते हैं उन्हें। और ये और जो हार्ट का राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स हैं ये सेप्टम की हेल्प से सेपरेटेड रहते हैं। और हार्ट हमेशा जो हमारी चेस्ट कैविटी है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हमारे ये रिवीजन हो गया। अब हम चाहेंगे नेक्स्ट पेज नंबर पर, which is page number 91, circulation of blood in human body. Now कि हमने ये तो पढ़ लिया कि सर्कुलेशन किसकी हेल्प से होता है, पर और उसमें किसकी ज़रूरत रहती है, पर अब हम ये पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन होता कैसे है। सो लेट अस रीड अबाउट इट। The circulation of blood was discovered by English physician William Harvey. In human body, blood circulates through different vessels. Pulmonary vein carries oxygen-rich blood from lungs to the left atrium. This blood is sent to the left ventricle. From here, it is pumped to the whole body through aorta, largest artery. Artery is divided into many small vessels called capillaries. The blood from the arteries enters the capillaries where the nutrition, oxygen and waste material are exchanged. Capillaries are tissue cells. Capillaries and tissue cells. Vena cava, a vein, bring carbon dioxide rich blood from the whole body to right atrium. From the right atrium, blood gets to the right ventricle. Finally, carbon dioxide rich blood pumps into the lungs through pulmonary artery. Heart always contains oxygen rich blood in its left side and carbon dioxide rich blood in his right side. ओके, सो अब हम इसे अच्छे से पहले समझ लेते हैं। जो सर्कुलेशन है ब्लड का, उसे इन्वेंट किया था इंग्लिश फिजिशियन ने, उनका नाम था विलियम हार्वी। और जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है डिफरेंट वेसल्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है लंग्स टू राइट लेफ्ट आर्टरी। ओके,
तो इसको ना हम हार्ट के डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर है पल्मोनरी वेन, ये रेड कलर के, जो कि है लेफ्ट साइड पर। ओके, तो आपको यहाँ पर पल्मोनरी वेन दिख रही है। तो वहाँ से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर होता है। आपको एरो से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ब्लड एंटर हुआ, फिर ये ऊपर गया और ये ऊपर जाकर ऑर्टा, मतलब ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ यहाँ पल्मोनरी वेन से, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे गया, फिर वापस से ऊपर जाकर ऑर्टा में गया, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की। तो ऑर्टा में गया और यहाँ के थ्रू ये पूरी बॉडी में चला गया। ओके, फिर जो आर्टरीज हैं वो बहुत छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। और जो ब्लड होता है आर्टरीज से वो कैपिलरीज में एंटर होते हैं, जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो एक्सचेंज हो जाता है कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स में। फिर जो वीना कावा है, जो कि एक वेन है, वो आपको यहाँ पर दिख रही है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, पर इनका अलग अलग नाम इसलिए क्योंकि जो कि ऊपर से ब्लड लाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाती है जो ऊपर साइड से, तो उस वेन को हम कहेंगे सुपीरियर वीना कावा। और वो वीना कावा वेन जो कि नीचे साइड से, जो भी लोअर पोर्शन है बॉडी का, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाती है, तो उस वीना कावा को हम इंफीरियर वीना कावा कहते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाती है पूरी बॉडी से कलेक्ट करके थ्रू राइट एट्रियम। आप देख सकते हो इंफीरियर वीना कावा भी राइट एट्रियम में ही जा रहा है ब्लड यहाँ से, और सुपीरियर वीना कावा में भी जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में ही आ रहा है। ओके, सो जो कि जब वो ब्लड आता है तो वो राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, यानी कि यहाँ से नीचे जा रहा है, आप एरोस की हेल्प से देख सकते हो, नीचे जाता है। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पंप होता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये एरो आप देख सकते हो, यहाँ से ये जाके ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। तो आपको समझ में आया कि पल्मोनरी आर्टरी बाकी आर्टरी से डिफरेंट क्यों है और पल्मोनरी वेन बाकी वेन से डिफरेंट क्यों है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये क्या कर रही है, जो हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लंग्स में ले जा रही है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए और वापस आ जाए। ओके, फिर हार्ट ऑलवेज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन इट्स लेफ्ट साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन इट्स राइट साइड। यानी कि जो ये आपको रेड पार्ट दिख रहा है ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो लेफ्ट साइड जो राइट साइड है यानी जो ब्लू वाला पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हार्ट बीट। हार्ट पंप्स ब्लड into the body. To perform pumping action, it contracts and relaxes continuously. This contraction and relaxation is called heartbeat. तो हार्ट पंप करता है ब्लड को और इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन हो रहा है ये हार्ट बीट कहते हैं इसको।
साउंड ऑफ हार्ट बीट कैन बी हर्ड बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक स्टेथोस्कोप डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अपनी हार्ट बीट को सुनते हैं। और अगर आप अपने चेस्ट के पास अपने ईयर लगा कर जिससे सुन लेंगे तो भी आपको सुनाई देगी हार्ट बीट। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कंटेन्स अ डायफ्राम एंड 2 earpiece एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक ये चेस्ट पीस है जिसमें डायफ्राम रहता है और यहाँ पर 2 ईयर पीसेज हैं और एक ट्यूब है जो सबको जॉइन कर रहे हैं। When the blood from the heart rushes into arteries, it creates a throbbing sound in artery. The throbbing sound is called pulse. Heartbeat and pulse both are related to each other. Each heartbeat generates a pulse in artery. यानी कि जब भी जो ब्लड है वो हार्ट में जब आर्टरीज से जब जाते हैं तो वो एक थ्रॉबिंग साउंड क्रिएट करता है जिसे हम पल्स कहते हैं। और ये जो पल्स और हार्ट बीट है ये दोनों से रिलेटेड ही हैं क्योंकि जब वो हार्ट बीट होगा उसका जो साउंड होगा उसमें से पल्स कहेंगे। मतलब उसका साउंड नहीं, ये जो थ्रॉबिंग होगी उसे हम पल्स कहेंगे। इसीलिए दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हार्ट बीट इन अ मिनट इज कॉल्ड द रेट ऑफ हार्ट बीट। यानी कि एक मिनट में जितने बार भी आपका हार्ट बीट जनरेट होगी हम उसे कहेंगे रेट ऑफ हार्ट बीट। ओके, तो जो एक रेस्टिंग पर्सन का जो रेट होता है हार्ट बीट का वो 72 to 80 पर मिनट होता है। एंड बाय एक्सरसाइजिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट। यानी कि अगर फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो तो उससे आपका हार्ट बीट क्या होता है, जो हार्ट बीट का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ let's see activity try and learn 7.1. Aim to examine the pulse rate. Procedure: place the middle and index finger to your right hand on your left wrist. You will feel the throbbing movement or pulse under the fingers. Count the number of a pulse in 1 minute. Repeat this activity 2 to 3 times. Observation: pulse rate of a healthy person is 72 to 80 per minute. तो आप जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो आपको अपनी जो आपके राइट हैंड की जो मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर है उसे आपको अपने लेफ्ट रिस्ट पर रखना है और जो भी थ्रॉबिंग साउंड होगा उसे काउंट करना है कि कितने टाइम्स हो रहा है वो 1 मिनट में। और अगर आप कोई हेल्दी पर्सन है तो आपके में वो 72 to 80 आएगा पर मिनट में। नाउ simple animals like hydra and sponges do not have well developed circulatory system. Water enters in the body cavity of these animals, which brings the nutrients and food materials and carries away waste material and carbon dioxide as it move out. तो जो सिंपल एनिमल्स हैं लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस, इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है वो उतना वेल डेवलप्ड नहीं रहता है और इनके अंदर वाटर एंटर करता है बॉडी कैविटी में और जिसके साथ इनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड फूड मटेरियल्स भी आ जाते हैं। और जब ये वाटर जाता है तो वो सारा वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है। ओके, सो नाउ let us read the next page. Okay, now on next page we have science bits. There are 4 types of blood groups found in human beings. Depending on the antigen found on
the plasma membrane of RBCs. These blood groups are AB, AB, and O. The blood group O is called universal donor. The blood group AB is called universal recipient. Blood transfusion is a process in which donor donates blood to another person called recipients. Any mismatch can lead to the death of the recipient due to the clotting of blood. तो जो हमारा ह्यूमन बींग्स है उसमें 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ। तो जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं उन्हें यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन है, ये कैसी प्रोसेस होती है, इसमें जो डोनर होता है वो डोनेट करता है ब्लड अनदर पर्सन को, जिसे हम रेसिपिएंट्स कहते हैं। और अगर ये जो ब्लड ग्रुप डोनेट करने में अगर कोई मिसमैच हो जाती गलती से, तो फिर जो रेसिपिएंट्स है उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए हमेशा देख कर ब्लड डोनेट कर ब्लड हमें लेना चाहिए या डोनेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स रिकॉल। तो ये हम बाद में करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमारे ये वाला वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can get the part 2. And yes, मैंने अभी तक अपने चैनल पर 2 वीडियोस और अपलोड कर चुके हैं जो कि लिटरेचर के हैं। तो अगर आपको वो देखना तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। और अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इंटरेस्टेड हैं तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, अक्षिता एंड अनुज चैनल, तो आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।